very scoring question, which is a question of section E. The long question you can score 5 marks easily because these questions are having a different parts. And due to that, it is very easy because we are not writing long answers, we are not writing essay type answer, just write in 2 or 1 line and you are done with it. So and this type of question can you have in your MCQs, assertion based questions. So while you watching my this video lectures, just make a note what I'm saying, and that will be a very helpful in your final exams. So the question is, give reason for the following. We have to be just write the reason. The reaction of ethanol with acyl chloride, is it carried out in the presence of pyridine? And this can be asked as an assertion question, like this reaction is carried out in the pyridine. And यहाँ आपने reason देना है, वहाँ reason होगा because pyridine is a good organic base and it absorb the HCl form during the reaction. Then both assertion and reason are correct, and the reason is a correct explanation to the assertion. So I am writing here, just watch and make a note of it. So यहाँ पे जो क्वेश्चन है ए एंड इसका जो सब पार्ट है दैट इज द इथेनॉल. तो हम पहले इथेनॉल की स्टेटमेंट लिख लेते हैं. इथेनॉल प्लस एस्टाइल क्लोराइड, एस्टाइल क्लोराइड एंड क्या बनाएगा ये, बिकॉज हमें प्रोडक्ट तो दिया नहीं है, बोला है पायराडाइन क्यों यूज करते हैं, व्हाई दिस रिएक्शन अकर इन अ पायराडाइन, एंड क्या बनाएगा ईस्टर. ओके, तो इसको जब हम फॉर्मूले में लिखेंगे दैट इज C2H5OH प्लस एस्टाइल क्लोराइड दैट इज CH3COCl प्लस सॉरी प्लस नहीं लिखना है हमें, ये जो हमारा कैटलिस्ट है उसका फॉर्मूला लिख देना अभी यहाँ पे, दैट इज C5H5N. ये पायराडाइन है, इस तरह से आपको पायराडाइन का फॉर्मूला भी पता चल गया दैट इज C5H5N. और ईस्टर बनाएगा, तो ईस्टर अगर इन दोनों को मैं देखूं तो ईस्टर क्या है दैट इज C2H5O और इधर से क्या आ जाएगा OCCH3 प्लस HCl. तो क्या बन रहा है यहाँ पे HCl, टू absorb the HCl the organic base. कौन है organic base? Organic base that is C5H5N means pyridine is used. and क्या है ये, pyridine is used. तो हम क्यों यूज करते हैं, ये रिएक्शन लिख दिया. आप अगर ये लाइन नहीं भी लिखते बट जस्ट आई एम गिविंग यू दी रीजन. ये रिएक्शन है, यहाँ पे ईस्टर बन रहा है, क्या बन रहा है, दिस इज द ईस्टर, अ स्वीट स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. एंड HCl साइड प्रोडक्ट बन रहा है, उस साइड प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए द ऑर्गेनिक बेस पायराडाइन इज यूज्ड. सो वी डन विद इट. 5 मार्क्स है, बहुत इजीली आप 5 मार्क्स ले सकते हैं. देन इसी में सेकंड पार्ट है, क्रिजोल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल. अब क्रिजोल्स क्या होते हैं, तो हम दोनों में पहले डिफरेंस देख लें. तो ये है आपके लिए फिनॉल. फिनॉल तो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप लगा है, और इधर हमने क्रिजोल्स लिख लेना है. ये भी कुछ फिनॉल जैसा ही है बट एट अ पैरा पोजीशन वी आर हैविंग द मिथाइल ग्रुप. तो ये क्या है, दिस इज द फिनॉल, और ये क्या है, दिस इज द क्रिजोल. नो, जो क्वेश्चन है, these are less acidic as compared to this phenol. So हम क्या कहेंगे कि phenol make phenoxide ion because the lone pair of oxygen will participate in the conjugation with the pi electron of the ring, but due to the presence of electron releasing group, that is methyl or any alkyl group, the releasing of proton is not that much easy, that is why they are less acidic. तो हम यहाँ पे पहले हमने दोनों बना ली, ये फिनॉल है ये क्रिजोल है, तो हम यहाँ लिखेंगे दी फिनॉक्साइड ion is not
possible in case of cresol due to the presence of alkyl, यहां पे क्या है वो CH3 ग्रुप, which is electron releasing ग्रुप. सो इतना सा आपने आंसर लिखना है. ये मैंने फिनॉल बना के दिखाया, ये क्रिजॉल बना के दिखाया कि यहाँ पे क्या है. यहाँ पे हम रेजोनेंस के कारण फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन स्टेबल नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप which is electron releasing in nature. That is why it is not possible, or this hydrogen is not releasing easily. So that is why resolves are less acidic as compared to, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है the phenoxide ion is not possible, और यहाँ हम लिख सकते हैं less stable, very less stable in case of cresol due to the presence of alkyl group which is electron releasing group. So यहाँ पे इसके साथ ही हमने बड़ी आराम से 2 नंबर स्कोर कर लिए हैं. Now move to the second question, वो भी 2 पार्ट्स में है. सेकेंड क्वेश्चन भी सब पार्ट है 5 मार्क्स क्वेश्चन का और 2 मार्क्स कंटेन कर रहा है. दैट इज दी विलियमसन सिंथेसिस. ओके, ये क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है. दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन एंड अगेन वी आर हैविंग अ 2 मार्क. तो यहाँ पे 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स के सब पार्ट्स हैं, तो बहुत इजी है आपके लिए. विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर. ये क्वेश्चन जो था ये अल्कोहल फिनॉल ईथर यूनिट में से था. विलियमसन सिंथेसिस आ गया मींस वी आर ऑन अल्काइल कीटोन, सॉरी दैट एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ गए. यहां दिया है विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. मींस हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. सो विलियमसन सिंथेसिस, so यहाँ पे बी पार्ट है. आपको अगर याद है, इफ यू नो अबाउट द विलियमसन सिंथेसिस, तो क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन प्रोसेस क्या है? दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. और किस किस से विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है? एक हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड और साथ में क्या लेते हैं? दैट इज द सोडियम एल्कोक्साइड. ये 2 चीजें हम लेते हैं, ठीक है. तो इन दोनों की जब हम यूज करते हैं तो वी आर गेटिंग दी, क्या मिल जाता है हमें? ईथर्स. तो क्या मिलेगा? ईथर ही याद रख लेना है आपने. अब ये देखो मैंने इसके साथ ही आपको विलियमसन सिंथेसिस की प्रोसेस क्या है और डेफिनेशन भी क्लियर कर दी. नाउ इफ द क्वेश्चन विल कम राइट शॉर्ट नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस, तो हम क्या करेंगे? एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड को जब हम यूज करते हैं तो ईथर मिलता है. और एक बात आपने बड़े ध्यान से याद रखना है कि जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी ही होना चाहिए, सेकेंडरी भी हो सकता है, बट टर्शरी जो है वो ये रिएक्शन नहीं देगा. तो अंडर दी वाइग्रस कंडीशंस मींस अंडर दी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में ये क्या होता है? जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, ये सोडियम एल्कोक्साइड है, वो ईथर बना देगा. तो यहाँ एल्काइल हैलाइड कैसा लेना है आपने? प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी. बट जो टर्शरी है, टर्शरी will not give this reaction. टर्शरी एल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं देता है, ये बात याद रखनी है. और एक बात, जब ये रिएक्शन हो रहा है तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन, कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगी? SN2. ये भी बात याद रखनी बेटा. एल्काइल हैलाइड जो है वो प्राइमरी होना चाहिए या फिर सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है. और रिएक्शन कौन सा है? दैट इज SN2. ये आपके एमसीक्यूज के लिए हेल्पफुल है. तो एल्काइल हैलाइड क्वेश्चन पूछा गया है, विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. आइडेंटिफाई द एल्काइल ब्रोमाइड.
मतलब जो हेलाइड है वो ब्रोमाइड है। मतलब यहाँ अब हमने एल्काइल के लिए आप आर लिख लो और हेलाइड आपको स्पेसिफाई कर दिया है ब्रोमाइड है। एंड सोडियम एल्कोक्साइड, मैंने यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड लिखा हुआ है ना, तो पता नहीं कौन सा है और क्या बनाया है। बनाने के लिए हमें प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट क्या दिया है, 2 इथॉक्सी, आपके प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, दैट इज 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। अब आपने बड़े ध्यान से इस बात को याद रखना है कि ये तो भाई प्राइमरी होना चाहिए। अब वो आपसे बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करिए एल्काइल हैलाइड कौन सा होगा, तो मैंने ये बोला कि प्राइमरी रखना है आपने 2 इथॉक्सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इथॉक्सी है तो दिस इज C2H5Br, ठीक। और उधर है 3 मिथाइल पेंटेन, तो हमारा जो एल्कोक्साइड है दैट इज CH3CH2CH2CH2। पहले तो पेंटेन बना लो, पेंटेन बना लिया आपने 3 मिथाइल, और पेंटेन के तीसरे कंडीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल है। तो आप एक हाइड्रोजन यहां से कम कर दें और उस पे साइड चेन लगा लें। और क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना है, सोडियम सॉल्ट लगाना है, तो आप किसी भी एक सेट, इधर से भी काउंट करेंगे तभी 3 है, इधर से भी काउंट करेंगे तब भी 3 है, तो हम यहां से सोडियम सॉल्ट लगाना है ना साथ में, तो दिस इज द वन वी आर हैविंग। तो ये हमारे पास आ गया, ये भी हमने यहां से H भी हटा देना है, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज, तो आप हमारे पास क्या आ गया, सोडियम 1 2 3 4 5 पेंटेन दिया, और उसके थर्ड पोजीशन पे मुझे मिथाइल, तो सोडियम एल्कोक्साइड मैंने बना लिया, दैट इज सोडियम पेंटॉक्साइड यहाँ बन गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल सोडियम पेंटॉक्साइड, और ये क्या हो गया हमारा इथाइल ब्रोमाइड। तो उन्होंने बोला आइडेंटिफाई करिए, आप आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई द एल्काइल ब्रोमाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड। तो मैंने यहाँ नाम लिख दिया है, ये है, दिस इज द इथाइल ब्रोमाइड, और ये क्या है, 3 मिथाइल सोडियम पेंटऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों हमारे जो स्टार्टिंग मटेरियल थे जिससे हम ईथर बना रहे थे, वो इस तरह से हमारे पास आ गए हैं। तो आपको इस तरह 1 मार्क मिल जाओ, कुछ भी लिखना नहीं है, जस्ट आइडेंटिफाई करना है हमने, कोई रिटर्न में नहीं, जस्ट डू द रिएक्शन एंड राइट द केमिकल फॉर्मूलाज एंड यू डन विद इट। एंड एक बात और बेटा, अगर हम यहाँ में सेकेंडरी या टर्शरी लेते हैं, और टर्शरी लेते हैं तो हमारे पास एल्कीन आ जाएगा, पहले तो ये रिएक्शन देगा ही नहीं। और अगर हम इस पे मतलब अगर हमारा ये उल्टा हो जाता है, हम इस पे एल्कोक्साइड लगा लेते हैं, टर्शरी बनाते हैं, देन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन विल बी अकर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं आएगा, एंड वी विल गेट दी एल्कीन। हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिलेगा, और ईथर्स हमें नहीं मिलेंगे। तो अगर टर्शरी आप लेते हो हमारा एल्काइल हैलाइड, इफ एल्काइल हैलाइड जो है वो टर्शरी होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन ओवरकम द सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन विल वर्क, क्लियर। सो द लास्ट क्वेश्चन जो कि 2 पार्ट्स में है उसे भी देख लेते हैं, दैट इज लास्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ टाउलिन 2,3 नाइट्रोबेंजीन। तो टाउलिन से कन्वर्जन है, और फर्स्ट पार्ट है टाउलिन को कन्वर्ट करिएगा, किसमें कन्वर्ट करना है आपने, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, ओके। टाउलिन क्या होता है,
चाओलिन मीन्स रिंग के साथ क्या लगा होता है, मिथाइल ग्रुप, ये चाओलिन है। तो चाओलिन को अगर आप क्रोमिक ऑक्साइड के साथ, अगर आप क्रोमिक ऑक्साइड एसिड के साथ ट्रीट करवाओगे, क्रोमिक एसिड क्या होती है, दैट इज H2CrO4, इसके साथ ट्रीट करवाते हो, या फिर KMnO4 के साथ KOH ले लेते हो, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ एसिडिक ले लेते हो। तो इनमें से किसी भी, और आप चाओलिन, ये दिस इज कॉल्ड एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन को अगर आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या तो क्रोमिक एसिड के साथ, ये क्रोमिक एसिड है, व्हाट इट इज, क्रोमिक एसिड, ठीक है, ये क्रोमिक एसिड है, इसके साथ, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को एल्कलाइन मीडियम में, या पोटेशियम परमैंगनेट को बेसिक मीडियम, किसी को भी ले लोगे तो आपका जो टाउलिन है, डजंट मैटर उसकी साइड चेन कितनी बड़ी है, वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। क्लियर है? अगर क्वेश्चन आता है कि टाउलिन से बेंजोइक एसिड बनाइए, तो दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल, यहाँ पे जो एल्काइल बेंजीन है, और इनमें से आप कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं एंड यू विल गेट दी चेन, कितनी भी लंबी होगी आपका प्रोडक्ट यही बनेगा। अब आपने नाइट्रोबेंजीन लगाना है तो बहुत इजी है, हम यहाँ पे ये जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और साथ में ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो हम इसे नाइट्रो ग्रुप लगाना है। आप H2SO4 कंसंट्रेटेड प्लस कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड ले लो, एंड व्हाट यू विल गेट, मेटा डायरेक्टिंग है दिस ग्रुप जो है, और यहाँ पे आपको नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा साथ में, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, दैट इज 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। और ये क्या मिल गया आपको, पहले बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है, और ये 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्लियर है? ओके, सो इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज दी बेंजीन टू एम नाइट्रो एस्ट्रोफिनोन। बेंजीन है, अब हमारे पास टाउलिन नहीं है, सिंपल बेंजीन है, तो बेंजीन को ले लेते, बेंजीन, और बेंजीन को आपने किस में लेके जाना है, पहले नाइट्रो बनाना है, ठीक है, तो सेम कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा हमारे पास। क्लियर है? अब इसे आप एस्टाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाइए, दैट इज CH3COCl एंड दिस रिएक्शन विल बी अकर इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमारे पास मेटा पोजीशन पे ये नाइट्रो ऐसा लगा रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O and CH3, नाउ दिस विल बी द मेन ग्रुप, तो यहाँ बन गया 3 M नाइट्रो एस्ट्रोफिनोन, M नाइट्रो एस्ट्रोफिनोन। क्लियर है? सो इस तरह से हमने 2 पार्ट जो कन्वर्जन पे भी कर लिए, कुछ ज्यादा नहीं लिखना, रिएजेंट का नाम पता होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा पता होना चाहिए, कौन सा रिएक्शन अगर हम रिएजेंट चेंज करते हैं तो व्हाट विल हैपन, और अगर हमारा कैटलिस्ट जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी अगर चेंज हो जाता है तो कौन सा रिएक्शन आएगा। तो होप you understand. For any doubt give me a comment in my comment box, and for coming updates please subscribe my channels.